हम स्टडी के दौरान अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब लेंगे तो हम we will call it like a x and y position. So this we will call x position, this we will call y position. This is basically frame of reference which is 0 0 origin, and we will study point. So this point is this much distance away, and maybe this may be time. So on horizontal axis we may plot time. So let's say after 5 minutes this point is at this, after 5 seconds this point is 2 meter away, after 10 seconds this point is 4 meter away. So we will plot it somewhere here, and then we can plot the motion of its movement. This we will study in detail, but this point which is the reference is called origin. Sir, I was writing the last. Say it loudly. थोड़ा सा जोर से बोलो. Sir, I was writing the last page. So. अच्छा, 1 second. Sir, I have taken the screenshot. Okay. So you can go to the next slide. हाँ, moving forward. वो ग्राफ बनाने की जरूरत अभी नहीं है, मैं समझा ही रहा था. Distance and displacement, very important foundation. Listen everything very carefully. Distance is also called path length. Total distance an object travel from its initial position to final position. Total distance an object travel from its initial position to final position is called distance. Displacement is shortest distance from its initial position to its final position. Shortest distance from initial position to its final position. Cases: path length can be equal to displacement. Path length is not 0, but displacement can be 0. Path length matlab distance. I will explain all these terms. सर वो वाला लिखना नहीं था, डिस्प्ले डिस्टेंस नहीं लिखना है अभी मैं बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको. ओके. ये भी चीज करके हम फिर से वापस चलेंगे उस पर. तो फिजिक्स में ना यू विल हैव टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम नाउ ऑन any physical quantity in two parts: scalar quantity and vector quantity. Have you heard this term ever before? Yes. बताओ क्या होता है, बताओ. So स्केलर डिस्टेंस को मेजर करता है और वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है. सॉरी, ठीक है, ठीक है, पर इनमें डिफरेंस क्या होता है? What is scalar and what is vector? So scalar quantity is a quantity which has only magnitude but no direction. Vector is a quantity which has two components, magnitude as well as direction. जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. If we go to a grocery shop, we buy, let's say, rice. What we say? I need 1 kg rice. है ना? अब 1 kg राइस में
डायरेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. 1 kg is enough. 1 kg is a magnitude which is enough. So mass is a scalar quantity. ठीक है, बिकॉज हमको उससे पूरा समझ में आ गया कि हाँ 1 kg का मतलब 1 kg है, उसमें ये थोड़ी ना है कि 1 kg नॉर्थ 1 kg साउथ. तो मास इज a scalar quantity. But suppose if I need to tell something like, हमने जैसे पिछली क्लास में फोर्स पढ़ा था, तो फोर्स को मैग्नीट्यूड हमने बोला 2 न्यूटन का फोर्स, फिर हमने पूछा 2 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में, राइट में, अप, डाउन, वेयर. सो उसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए, देन इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऐसे ही हम जब मोशन को स्टडी करते हैं तो हम दो टर्म पढ़ते हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं जिसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, पर डिस्प्लेसमेंट करते वक्त हम डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं. तो इसलिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात आ गई. अब फिर से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आते हैं. अब यहाँ पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, पहले उसको समझते हैं. हमने कहा डिस्टेंस, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है. ये एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन यहाँ से चलता है और यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ, और एक पॉइंट है सी. मान लो ये 2 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है. अब एक पर्सन यहाँ से चलता है, वो पहले ना ही गोज फ्रॉम ए टू सी एंड देन ही कम्स फ्रॉम सी टू बी. यहाँ से चला, यहाँ तक गया, फिर पलटा और यहाँ पर आ गया और यहाँ के खड़ा हो गया. अब इस केस में टेल मी व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. Sir, distance is 4 kilometer. Distance is 4 kilometer. And sir, displacement is 2 kilometer. 2 kilometer? Yes, sir. This is the answer by Ayan. What is the answer by Leona? Sir, I think the distance is 4 kilometer. आप थोड़ा सा माइक के पास से बोलो ना लियोना, मुझे बहुत कम सुनाई पड़ रहा है. Sir, I think so distance is 4 kilometer. हाँ ठीक है, ओके. And sir, displacement. So I don't know the displacement. Go back to the definition. Definition is total path length is distance. Minimum shortest distance between initial position and final position is displacement. Sir, sorry sir, वो मेरा 2 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर है. सर मेरा आंसर डिस्प्लेसमेंट का 2 किलोमीटर की जगह 3 किलोमीटर. हाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट आपका 2 किलोमीटर लिखा ना, और अभी 4 लिखा. नहीं अभी सर 3 किलोमीटर हो गया. 3 किलोमीटर बोल रहे हो डिस्प्लेसमेंट. ओके, Yes, sir. I think it's 1. 3 कर देता हूँ. मैं फिर से डेफिनेशन बोलता हूँ, एक बार फिर से सोचो. टोटल पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन इज डिस्टेंस. एक बंदा ए से शुरू हुआ, पहले सी तक गया तो 3 किलोमीटर हो गए, फिर सी से बी पे आया तो 1 किलोमीटर और हो गया, 4 किलोमीटर हो गए. ये तो डेफिनेशन के हिसाब से सही लग रहा है. टोटल डिस्टेंस तो ये 4 किलोमीटर चला है. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. अब डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त ना, बोथ ऑफ यू forget everything, only remember initial point and final point. We will forget everything, we will only remember initial point and final point. This was the initial point, this was the final point, and we know shortest distance between 2 points is a straight line which joins them. Yes, sir. And this is how much?
Sir, 2 kilometers. 2 kilometers. So right answer for displacement is 2 kilometer. Okay, sir. ठीक है. अब जो दो स्टेटमेंट नीचे लिखे थे उनको समझो. कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे को फॉलो करो. ये आई विल मेक दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर टू यू. आई विल टेक so many examples that you will enjoy and you will learn also. So let's try to understand simple things. 2 points, one A and say B, point B. Now let's say one person goes from point A to B, and A to B, let's say it is 2 kilometers away, and a person from here goes to B. What is distance? What is displacement? Sir, distance and displacement are both 2 kilometers. Both are 2 kilometers. Yes, sir. So first point on our presentation slide says path length can best be equal to displacement. Path length can best be equal to displacement, or other way around. Displacement can best be equal to path length. Path length से बड़ा कभी displacement नहीं होगा, या तो छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है मैक्सिमम. तो ये सबसे सिंपल हमने मोशन का एग्जांपल लिया, और इस सिंपल एग्जांपल में हमने बोला कि दोनों बराबर हैं. So path length can be maximum equal to, और displacement can be maximum equal to path length. अब मैं इसको और extend कर रहा हूँ आगे इसी एग्जांपल. Now person decides that he forgot his wallet at home. He goes from B to A again, comes back to here. यहाँ पर A से B पे गया, B से वापस A पे आ गया. अब मुझे इस केस वाला जो बात है इन दोनों का मिला के, अब बताओ मुझे डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? Sir, displacement 2 kilometer, distance 4 kilometer. डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर क्यों है? Sir, because सर दोबारा उसे जाने में पाथ लेंथ तो सेम ही रहेगी. नहीं, देखो पाथ लेंथ तो आपने बराबर 2 + 2 करके 4 कर दिया, मैंने लिख भी दिया डिस्टेंस. Yes, sir. पर डिस्प्लेसमेंट में मैं व्हाट आई एम सेइंग, डिस्प्लेसमेंट मींस इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. उससे मतलब नहीं है कि वो कितना घुमा है, कितना दौड़ा है, कितना रेस्ट किया है, कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है. अभी कहाँ है वो? जहां वो था. Yes, sir. तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? Sir, 0 kilometer. 0 होगा डिस्प्लेसमेंट. And this is our second point. Path length is not 0. Path length कभी भी 0 नहीं होगा, but displacement can be 0. Whenever initial position and final position is same, displacement is always 0 in that situation. Clear है? Yes, sir. ठीक है, अब नोट करो इसको जरा, फिर मैं और एग्जांपल लूंगा इसके. मैं एक गिलास पानी पी के आ रहा हूं, जब तक आप इसको नोट करो. कर लिया क्या नोट? Yes, sir.
जो केसेस लिखे ना इसमें पाथ लेंथ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के आगे नोट लगाना, नहीं तो भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा। इसको ऐसे लिखो, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू पाथ लेंथ। सर आपने वो नोट वाली जो स्क्रीन थी वो दिखा रखी है अभी, डिस्टेंस जो आपने दिखाया था ए बी सी वाला। अभी वो व्हाइट बोर्ड चल रहा है? यस सर। अच्छा, एक सेकंड। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। तो मैंने वो व्हाइट बोर्ड वाला भी कॉपी कर दिया। हाँ हाँ, वो एग्जांपल तो नोट कर ही लो ना, थोड़े सही रहेगा। अभी मैं व्हाइट बोर्ड शेयर भी करूंगा व्हाट्सएप पे। यहाँ पर केस जब लिखोगे ना तो मुझे एक बार प्रॉम्प्ट कर देना, आई विल डिक्टेट, थोड़ा लिख लेना उसको। सर केसेस बता दो। केसेस में लिखो फर्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और पाथ लेंथ। Sure it is. सेकंड लिखो, path length can never be zero. Path length can never be zero, but displacement can be zero. Path length can never be zero, but displacement can be zero in situations where initial position and final position are same. Sir, in where? In situations where
हम ये लिख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जब जब जीरो हो सकता है उन सारी सिचुएशन में जीरो हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही होगी. So displacement can be zero in situations where initial position and final position are same. Sir, written. ये भी नोट कर लो. कर लिया नोट? सर वन सर. Sir, wait. सर डन. Sir, wait. हो गया? Sir, done. मैं इसको I'm restarting the meeting. Join again.